and request everyone to switch on your videos. Today we'll be discussing on a very important topic, and although this is the PPT, I will be covering it in a very different light. दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में, एक होता है जिसका बुकिश नॉलेज होता है और दूसरा जिसका एक्सपीरियंशियल नॉलेज होता है, राइट, अबाउट आवर रिलेशनशिप्स इन लाइफ. आप लोग एक गोल्डन चीज को याद रखिएगा एंड प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स GS, because this is a golden statement that your exposure decides your experience and your experience decides your expertise. What did I say? Your exposure decides your experience and your experience decides your expertise. आप कितना टॉक्सिक रिलेशनशिप में है ये वही व्यक्ति को पता चलेगा जो एक्चुअली उसको एक्सपीरियंस कर रहा है हर दिन. किसी को अगर कान में दर्द हो रहा है, वो कान का दर्द वही महसूस कर रहा है जिसको वो हो रहा है. बाकी लोग बोल सकते हैं दर्द ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस से किया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. Out of all the people in this world, the people who learn by experience, they actually feel it, they understand it, they go through it, and when they go through it, it causes a severe kind of pain and a severe kind of shuddhi, because of which he actually gets the experience of life. We all have had great teachers, but none of the teachers is as amazing as life itself. In a toxic relationship, initially I'll be talking about today's relationships. As days are progressing, I'm seeing this more and more, and we need to upgrade this to a higher level. Toxin is a poison. It is not good for physical, mental, emotional, and spiritual health. And it is a repetitive pattern. Sorry for the long spelling. And how many of you have heard the word gaslighting? Can you raise your hands if you have heard the word gaslighting? Gaslighting is a concept in relationship where we use manipulation techniques and psychological methods to show that मैं बिल्कुल सही हूं और तुम बिल्कुल गलत. And if there is a toxin in the body, there are only two ways. Either we treat it or we remove it, right? And this can be treated physically, mentally, and emotionally. Why does a loving relationship become toxic? ये हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज इस दुनिया में अगर है, राइट, उसमें देर इज ASK. A इज एटीट्यूड, S इज स्किल एंड K इज नॉलेज. हर चीज में फर्स्ट वी नीड टू नो द नॉलेज, देन वी नीड टू नो द स्किल, एंड देन वी नीड टू नो व्हाट इज द एटीट्यूड. हम लोग को समझना पड़ेगा द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड. द नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज फॉर आवर शुद्धि. And Shuddhi, so that we can understand why we have come into this world and what is the purpose of life. Athato Brahma Jigyasa. That means, who am I? Who is God? And what is my relationship with God? And as a fish out of water cannot be happy, we need to understand that until we revive our relationship with ourselves, we cannot be happy. Can any one of you tell me why we have addictions? कोई बोल सकता है कि एडिक्शन का मेन कॉज क्या है, चाहे वो फूड एडिक्शन हो, मोबाइल एडिक्शन हो, या नेटफ्लिक्स एडिक्शन हो. व्हाट इज द कॉज ऑफ एडिक्शन? कैन एनीवन टेल मी? ओके, सो ध्यान से सुनिए. हर आत्मा का एक नीड होता है एक्सप्रेशन. वेर ही नीड्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ इन अ वे दैट अदर पीपल डजंट जज हिम, डजंट हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम एंड एक्सेप्ट हिम द वे ही इज. तो मैं इसका डीप आंसर दूंगा. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजते चैव षट्विधि प्रीति लक्षणम. आज के दिन में आप देखेंगे कि हर आत्मा का एक जरूरत है सुनना, बोलना और अपने आप को एक्सप्रेस करना, राइट? सुनना, बोलना और अपने आप को एक्सप्रेस करना. इंडिया में सेक्स इज कंसिडर्ड लाइक अ टैबू. And that's why people are curious about sexual activity, because of which they watch porn. But if you go to countries like Norway, Poland, people don't watch porn because that openness is there and that discussion is there. They can express themselves freely. I'm not talking that a person should engage in illicit sex, but he can express himself freely, talk about it. Then there is no amount of curiosity
And that curiosity cannot be fulfilled when the person is doing that thing. जैसे थोड़ा सा घी डालते रहेंगे आग में तो वो आग बढ़ते रहेगा, कम नहीं होगा, राइट? सो द क्यूरियोसिटी रिमेन्स। जैसे कि अंकल चिप्स खा रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, और खा रहे हैं और खा रहे हैं और खा रहे हैं, लेकिन अंकल चिप्स से पेट नहीं भरता जब तक चावल दाल रोटी सब्जी अंदर जाती नहीं है, राइट? हाउ इट बिकम्स टॉक्सिक। हम लोग को ये डीप बात जानने की जरूरत है। I want to ask others like why their videos are off. Vinu ma'am, Lakshmi Mataji, Ashika, all of you please switch on your videos if possible. And if you're not, yeah, please send a message as to why you're not able to switch on, yeah, as far as possible. क्योंकि क्या है, आप बुरखे में रहते नहीं सकते हैं, हाँ? स्पीकर को आप देख पा रहे हैं लेकिन स्पीकर आपको देख नहीं पा रहे हैं, सो एनर्जी एक्सचेंज गड़बड़ा जाएगा, राइट? So until the reason is genuine, the video needs to be on. Yes. Okay. Now हम लोग को समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज में familiarity breeds contempt. मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप का क्या इशू है कि चूंकि दोनों हमेशा साथ में रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों हमेशा साथ में रह रहे हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हर दिन छुटपुट चीजें होती है, जिससे अगर रिलेशन 20 पे है वो 19 पे जाएगा, 18 पे जाएगा, 16 पे जाएगा, और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप कम हो जाएगा। ओके, धीरे धीरे वो रिलेशनशिप कम हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप अपने दोस्त को 20 साल बाद मिले हैं, तो 20 साल बाद जब आप अपने दोस्त को मिलेंगे तो रिलेशनशिप अगर आपका 20 साल पहले 33% पे था तो वो 33.1% से शुरू होगा, क्योंकि कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन एक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप और कपल रिलेशनशिप में डेली यू नीड टू डू सम इनपुट्स फॉर द अदर पर्सन। एक छोटा सा आइसक्रीम ले आइए उनके लिए, एक छोटा सा मीठा बात कर दीजिए, एक सर्विस कर दीजिए। इट कुड बी एनकरेजिव टच टू दैट अदर पर्सन, बिकॉज रिलेशनशिप इज लाइक अ लिफ्ट। जब तक आप बटन दबा के रहेंगे वो ऊपर जाएगा, जैसे ही बटन छोड़ देंगे वो नीचे आ जाएगा, राइट? ओके, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कैन एनीवन फ्रॉम द ग्रुप टेल मी व्हाट इज दैट वन थिंग जो रिलेशनशिप में रस को मेंटेन करके रखता है? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर एक्टिव। अपने चैट बॉक्स में मैं एक एमसीक्यू आपको पूछ रहा हूं, वो एक चीज बताइए, राइट? वो एक चीज बताइए जो वो रिलेशनशिप में रस को मेंटेन रखता है। जैसे एक शुगर केन यानी इक को एक बार, दो बार, चार बार, 8 बार निकाल दिया, अब उसमें रस नहीं बचा है, राइट? राइट वन थिंग इन द चैट बॉक्स, एक्सप्रेसिंग लव, ओके, दैट्स गुड, बट आई नीड अ डीपर आंसर, नाइस आंसर। ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, नो प्रॉब्लम एटीट्यूड, ओके, दैट्स गुड, यस। सो जैसे हर ट्रेन 2 पटरी पे चलती है, लोगों को एक्सेप्ट करो प्रणव, आई एम एक्सेप्टिंग, है ना? हाँ, प्लीज आप लोग इस बात को गांठ बांध लीजिए, ये बात पे मेरी जिंदगी चलती है। जैसे एक ट्रेन 2 पटरी पे चलती है, आपका लाइफ 2 पटरी पे चलना चाहिए, दैट इज ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। प्लीज टाइप जीसी इन द चैट बॉक्स। जब तक आप खुद को ग्रो नहीं कर रहे हैं और जब तक आप कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं, आपका लाइफ स्टैटिक हो जाता है, वो कुएं की पानी की तरह जिसमें महक आने लगती है। लेकिन जिस कुएं के पानी से हमेशा पानी निकाला जाता है, उसमें ऑक्सीजन रहता है, उसमें मिठास रहता है। तो आप ग्रो कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए, आप ग्रो कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए। लाइक आई एम वेरी हैप्पी विथ नीरज जी एंड हिज वाइफ, दे आर अ यंग कपल, दे रिसेंटली गॉट मैरिड, they are growing themselves and they are contributing, they are growing, they are contributing, whatever knowledge is gaining he is contributing. एक व्यक्ति मुझे बोला, सर मैं ना वेट कर रहा हूं, जब मैं परफेक्ट बन जाऊंगा तब मैं करूंगा। बॉस गलती है, तुम भगवान थोड़ी ना हो जो तुम परफेक्ट बन जाओगे तब करोगे। सिर्फ भगवान परफेक्ट हो सकते हैं, तुम नहीं हो सकते हो। बॉस उस राइट समय के लिए रुक के मत रहो, जब जीवन में तुम राइट चीज करोगे, तुम राइट चीज को करो, राइट समय ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सो स्टार्ट विद दैट राइट। जनरली जो टाइप 3 पर्सनालिटी होते हैं, वेट करते रहते, कब वो सही समय आएगा, कब वो सही समय आएगा। सही समय तभी आएगा जब आप मानोगे वो सही समय है, राइट? सेकेंड थिंग इज लैक ऑफ बाउंड्रीज। ये मैं बार बार बोलता हूं। जब आप रात को सोने जाते हैं, क्या आप अपना बिस्तर जाके खेत में लगा लेते हैं? रात को कुत्ता आ जाएगा, बिल्ली आ जाएगी, शेर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, मच्छर आ जाएंगे, नहीं। आप अपने घर में दरवाजा बंद करते हैं, अंदर का बेडरूम को भिड़काते हैं, फिर आप सोते हैं, राइट?
हैरानी की बात यह है कि हम लोग रहने के लिए तो इतना बाउंड्रीज रखते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई बाउंड्रीज नहीं रखते हैं। कोई भी आपके जीवन में कभी भी घुस जाता है और हाथी जैसे रौंद के चला जाता है, आपको रौंद के चला जाता है। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट एवर इन योर लाइफ दैट आप डोर मैट की तरह बन गए हैं? हाँ, लोग आ रहे हैं, अपना पैर पोंछ रहे हैं और अंदर घुस के चले जा रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं, बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल, डोंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल। अब मैं चाहता हूं किसी को बताने, कौन मुझे ये स्टेटमेंट को समझा सकता है कि बी रेस्पॉन्सिबल टू पीपल एंड डोंट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल विद अ एग्जांपल? यस, क्विक। अचानक से आप म्यूट हो गए हैं, बट वेरी नाइस। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू दिशा बिकॉज शी गिव द राइट आंसर। अब मैं इसको डिटेल में समझा देता हूं। मान लीजिए आपकी मम्मी बीमार है और आप लाके दवाई देते हैं, और वेलकम अनीता मैम हैज जॉइंड अस, नाइस टू सी यू अनीता मैम विद दैट ब्यूटीफुल लवली स्माइल। सो हम लोग को समझने की जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आप अपनी मम्मी को जाके बोलते हैं मम्मी दवाई खा लो, मैं पैर दबा दूं क्या? मम्मी बोलती है मैं नहीं खाऊंगी। कोई बात नहीं, अभी बीमार है। अब फिर से बोलते हो, दवाई लाके दे देते हो, वो बोलती है हटा दे, मैं नहीं खाऊंगी। तीसरी बार आप जाके बोलते हो, मम्मी बोलती है मैं नहीं खाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या? देन यू शुड स्टॉप। 3 बार बोल के, बिकॉज यू कैन बी रेस्पॉन्सिबल टू योर मदर, यू कैन नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर योर मदर। वो रेस्पॉन्सिबल फॉर सिर्फ परमात्मा होता है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जो हर आदमी को, हर पशु पक्षी को 84 लाख योनियों का ध्यान रखता है। कैन एनीवन एक्सप्लेन मी इन वन लाइन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी? जैसे होम्योपैथी एलोपैथी में अंतर होता है, सिंपैथी और एम्पैथी में क्या अंतर होता है? कैन एनीवन टेल मी इन वन लाइन? आज थोड़ा आप लोग का टेस्ट भी हो रहा है, कौन कितना ध्यान से मेरे क्लासेस सुना है। So those who have joined new, you don't worry, that question is not for you, but for the regular attenders. Yes. वीडियो ऑन करके बता सकते हैं सिंपैथी और एम्पैथी में क्या होता है? Anyone else? What is the difference between sympathy and empathy? देखिए, मैं पढ़ाता जाता हूं, आप लोग भूलते जाते हैं, you know, it becomes very difficult. एम्पैथी एक लाइन में समझ लीजिए, पुटिंग योरसेल्फ इन द अदर पर्सन शूज। मान लीजिए नीरज जी बीमार पड़ गए, हालांकि वो कभी बीमार पड़ेंगे नहीं बिकॉज ही फॉलोज अ गुड शेड्यूल। मान लीजिए वो बीमार पड़ गए और वो हॉस्पिटल में है, और डॉक्टर सौरभ वहां जाते हैं, उनके पास सब फैसिलिटी है, बट डॉक्टर सौरभ वहां जाके बस खड़े हैं उनका हाथ पकड़ के। दैट इज एम्पैथी। एडवाइस मत दो, बस खड़े रहो, डोंट स्पीक, जस्ट स्टैंड देयर फॉर हिम। ही डजंट रिक्वायर एनी सर्विस, ही जस्ट नीड सपोर्ट। एंड सिंपैथी मतलब क्या? यू डू समथिंग फॉर हिम, बस खड़े मत रहो वहां पे, उसे पानी पूछो, उसको कुछ दवाई दो, उसको कुछ मीठी बातें बोलो। इंडिया में एक बहुत गंदी आदत है, किसी को भी कुछ बोलो, प्रभु जी मेरा ना गला बैठा हुआ है, अरे गला बैठा हुआ है हिंगोली खा लो, अरे तुमको पता नहीं क्या कफ अरिष्ट पी लो, अरे गर्म पानी गुनगुना करके खा लो। अरे उसको ज्ञान नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए, अच्छा कैसे प्रभु जी, कैसा आपका गला हो गया? अरे पता है कल रात को थम्स अप पी लिया था मैंने ठंड में। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नीड फॉर द सोल इज टू हियर। जब कोई फैमिली में एक हस्बैंड मेहनत करके लौटता है और आते ही बैठ के पेपर पढ़ता है और उसकी वाइफ बोलती है सुनो ना घर में जीरा खत्म हो गया है, अरे क्या है, पैसा तो दे के रखा है, जाके ले ले। शी डजंट नीड सिंपैथी, शी नीड्स योर एम्पैथी दैट टाइम, है ना? वो सुबह से अकेले काम की है, अब उसको जरूरत क्या है? जरूरत है कि कोई मुझे कुछ सुने, एटलीस्ट मेरा पति मुझे कुछ सुने। तो वो हिंट दे रही है कि तुम अपना पेपर नीचे रखो और उससे पूछो कि कैसा रहा तुम्हारा दिन, हाउ आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग गुड अबाउट दिस, क्या कुकिंग में किया आपने, किसी का फोन आया क्या, मम्मी से बात को, बस इतना ही चाहिए उसको, राइट? एंड द ग्रेटेस्ट रीजन व्हाई रिलेशनशिप बिकम्स टॉक्सिक, यू नो इज व्हाट? ब्राउन डायरी देना मेरे को। मोह और अटैचमेंट। लव प्लस अटैचमेंट इज इक्वल टू पेन, एंड लव माइनस अटैचमेंट इज इक्वल टू प्योर लव। ब्राउन डायरी, करेक्ट? तो मोह एंड अटैचमेंट के कारण आदमी एक नेगेटिव रिलेशनशिप से निकल नहीं पाता है। व्हाई? बिकॉज वो होप में रहता है हम होंगे कामयाब एक दिन, और वो एक दिन कभी उसके जीवन में आता नहीं है। अब मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछने वाला हूं, क्योंकि मैं सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाने वाला हूं, राइट?
Why do we fear losing people in our life? Can anyone tell me? Why do we fear losing people in our life? I need answers. Whatever love is there has some degree of selfishness in it, क्योंकि माता का प्रेम सबसे प्योर है, लेकिन उसमें दो अशुद्धि है. पहला, वो अपने बेटे को उतना प्रेम कर सकती है जो दूसरों को नहीं कर सकती, और दूसरी बात, वो एक्सपेक्ट करती है कि मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा. लेकिन परमात्मा के प्रेम में ये दो अशुद्धियां भी नहीं है. हम लोग को इस बात का बहुत डर लगता है कि ये रिलेशनशिप अगर छूट जाए तो मेरी जरूरतों को कौन पूरा करेगा. प्लीज अंडरस्टैंड, उम्मीद और जरूरत पूरा करने में थोड़ा अंतर है. आई टेल यू हाउ. एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी is equal to frustration. Needs are real. Needs are physical. Expectations could be imaginary. Needs are real. अगर आपको प्यास लगी है तो लगी है, लेकिन आपको मन है कि आज मुझे कोई रूह अफ़ज़ा पिला दे, ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा, और घर में रूह अफ़ज़ा है नहीं, तो इट बिकम्स एक्सपेक्टेशन. तो एक बात हम लोग को समझने की जरूरत है. ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति. जो एक लेवल पे पहुंच गया है ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, जिसको पूरी तरह भरोसा है कि ओनली परमात्मा और उसके शुद्ध भक्त ही मेरे नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति को इस दुनिया में किसी को खोने का डर नहीं रहता है. प्लीज अंडरस्टैंड. स्क्रीनशॉट्स. प्लीज अंडरस्टैंड दिस डीप पॉइंट. लक्ष्मी माता जी बिल्कुल सही बात बोली. चाहे मैं हूं, चाहे नीरज जी हैं, चाहे लक्ष्मी जी हैं, चाहे प्राणेश है, चाहे गुरमीत मैम है, हर आत्मा इस संसार में आया है केवल अपने आप को खुश करने के लिए. अब कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, मैं तो दान दक्षिणा भी करता हूं, मैं तो गरीबों को भी खिलाता हूं, मैं तो बहुत सेवा भी करता हूं. भाई साहब, इससे आपको खुशी मिल रही है, आपकी नीड फॉर कंट्रीब्यूशन फुलफिल हो रही है. दैट इज ऑल्सो सेल्फिश. ओके, द पॉइंट व्हाट आई वांट टू मेक इज दैट हर आत्मा इस दुनिया में आई है अपने आप को खुश करने के लिए. जब आप इस मिसकैलकुलेशन में रहते हैं कि वो मुझे खुश कर देगा, ये मुझे खुश कर देगी, ये चीज मुझे खुश कर देगा, तो वो एज ही राइटली सेड, वो नीड एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है और वो कभी फुलफिल नहीं हो सकता. नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन फुलफिल योर नीड्स. दे कैन ओनली हेल्प यू आइडेंटिफाई योर नीड्स. ओनली यू, only you can fulfill your needs. And when you are dependent on God to fulfill your needs, you can fulfill your needs to quite an extent, to the degree you're dependent on God. अब मैं आज का एक्सपीरियंस आप लोग को बताता हूं. आज मैं सुबह 2 बजे से उठा हुआ हूं. सुबह का साधना खत्म करके 4 बजे थोड़ा सा व्यायाम करके 6 बजे से काम लग गया. इतना सारा काम, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक. करीब 8-10 लोगों से मीटिंग हो गई. शाम तक मैं एकदम एग्जॉस्ट हो गया, एकदम. सो ऑल ऑफ अ सडन माय गुरु कॉल्ड मी. फटाक से ही कॉल्ड मी. ओके, एंड अपने क्लेयरवॉइंट सिद्धि से उन्होंने देख लिया कि आज इसका दिमाग पूरा सटका हुआ है और बहुत ज्यादा हेक्टिक हो गया शेड्यूल. एंड सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग. बोले, सुबह उठ के परमात्मा से एक बार क्यों नहीं बोलते हो कि प्रभु, मैं उतना ही बिजी रहना चाहता हूं जितना आपका काम हो, और इधर उधर के कामों के लिए मुझे बिजी मत कीजिए प्रभु. अगर मैं बिजी हो रहा हूं, माया देवी मुझे भगा रही है, मैं उतना बिजी नहीं होना चाहता. हाउ मेनी ऑफ यू कुड गेट द डेप्थ ऑफ दिस स्टेटमेंट? रेज योर हैंड्स. I don't say no because I am so busy. I say no because I don't want to be so busy. आज की दुनिया में देखेंगे सबको ही भाग रहे हैं. किसी को बात करने का समय नहीं, फुर्सत करने का समय नहीं, मिलने का समय नहीं, सभी भाग रहे हैं. लाइफ इतना फास्ट होते जा रहा है कि जो मोबाइल के पहले का जमाना था 2000,
13 के पहले वो एक अलग टाइम था और आज एक अलग टाइम है। इंस्टा आ गया है, फेसबुक आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, टेलीग्राम आ गया है। सबका गर्दन झुका हुआ है, परमात्मा के सामने ना झुक के मोबाइल के सामने, माया के सामने झुक गया है। हर दिन सुबह उठ के एक बार हाथ जोड़ के परमात्मा को बोलिए, प्रभु मुझे उतना ही बिजी रखिए जितना आपका काम हो। ये छोड़ के मैं इधर उधर के कामों में बिजी नहीं रहना चाहता हूं। मेरा पूरा चेतना बदल गया। कई बार ये दो एग्जाम्पल मैं देता हूं एटीट्यूड के बारे में। एक सीईओ ऑफ कंपनी एक जूते वाले को बोला जाके जूते बेच दे, उसने एक भी जूता नहीं बेचा, आके बोला कि किसी को जूते पहनना आता ही नहीं सर, मैं क्या करूं। सीईओ ने अगले दिन दूसरे को भेजा, उसने सारे जूते बेच दे और आके वही आंसर बोला, सर किसी को जूते पहनना आता ही नहीं था, मैंने सबको सिखा दिया, सब जूते बेच डाले सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है, किसी को जूता पहनना आता नहीं है। एक ने किसी को जूता दिया ही नहीं, दूसरा ने सोचा क्या अपॉर्चुनिटी है, या तो बस लोग चप्पल पहनते हैं, उसने सबको जूता पहना दिया, सारे जूते बेच डाले। जब तक मेरे गुरु ने आज शाम को मुझे फोन नहीं किया था, मुझे लगा क्या लाइफ है, बस पागल कुत्ते की तरह मैं भाग रहा हूं इधर उधर इधर उधर। हाउ विल आई स्टॉप, हाउ विल आई पुट अ ब्रेक, वेयर इज द पॉज बटन। अचानक से फोन आया, बोले सुबह उठ के एक बार भी परमात्मा को बोलते हो कि प्रभु मैं उतना ही बिजी होना चाहता हूं जितना आपका काम हो, दैट्स इट। इतना एनर्जी फील हुआ मुझे पूरा एटीट्यूड चेंज हो गया। ट्रेन में एक सेठ जी जा रहे थे, दूसरे साइड में एक गरीब आदमी था। गरीब आदमी के 8 बच्चे बड़े परेशान कर रहे थे, कोई टॉयलेट, कोई आइसक्रीम, कोई चिल्ला रहा है, कोई कूद रहा है। उसने बोला शट अप, क्या तमाशा बना के रखा है, ये ट्रेन है कि क्या है। उसने बोला सर जी माफ कर दीजिएगा ना, कोरोना में उनकी माता गुजर गई है, बस अभी उनको शमशान घाट से जला के आ रहे हैं सर जी, माफ कर दीजिएगा सर। बाप रे, एटीट्यूड बदल गया। अब वो आइसक्रीम खरीद रहा है, टॉफी खरीद रहा है, खाना खरीद रहा है, उनको दे रहा है। क्या हो गया भाई अब बच्चे अच्छे लगने लगे। हाँ क्या हो गया। एवरी डे वी नीड टू वर्क विथ आवर एटीट्यूड। एंड हाउ टू वर्क विद द एटीट्यूड, इसके लिए बेसिक लेवल इज ग्रेटिट्यूड। कई बार कस्टमर्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, ऐसा रोनी सूरत बनाएंगे कि आप भी डिप्रेशन में चले जाओगे, आके बोलेंगे सर जी मैं मरना चाहता हूं। कभी भी कोई डिप्रेशन में आए, तकलीफ में आए, उसको बस पहला पूछो, क्या पूछो, आज 5 चीज बताइए जो तुम्हारे जीवन में आज अच्छा हुआ। तुरंत देखेंगे कि या तो वो सोच नहीं पाएगा, अगर सोच नहीं पाएगा तो आप हेल्प कर दीजिए। अरे तुम जिंदा हो, आर यू हैप्पी अबाउट इट, हाँ सर। आंख खुलते तुमने देखा, रोशनी देखा, सूरज उगा है, आर यू हैप्पी अबाउट इट, हाँ सर। सांस ले पा रहे हो, हाँ सर। हवा में उड़ तो नहीं रहे हो ना, ग्रेविटेशन है ना, स्थित हो तुम एक जगह पे, बदन में कपड़ा है, हाँ सर। खुशी की बात है कि नहीं, मनुष्य योनि में जन्मे हो, भक्त मिल गए हैं। धीरे धीरे आप देखोगे कि यू कैन मेक हिम हैप्पी, राइट। मोह का डेफिनेशन क्या है, कैन एनीवन टेल मी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोह। कोई बोल सकता है। The connection also decides how much you miss, and the connection decides everything. आपके मोबाइल में कॉन्टैक्ट्स होते हैं और कनेक्शंस होते हैं, and connection is a continuous energy cord by virtue of which you know we develop deep relationships and faith and other things in the process, right? So it is very very important. देखिए, एक लाइन में समझ जाइए पॉजिटिवनेस कहाँ होता है। पॉजिटिवनेस वहीं होता है जहां आपको लगता है ये मेरा है। पॉसेसिवनेस वही होता है जहां लगता है ये मेरा है। भगवत गीता के 13वें चैप्टर के 8वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, अमानित्वम अधम्बित्वम अहिंसा क्षांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। अहम मतलब मैं, ममेति मतलब मेरा, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। अहम और ममेति में बहुत अंतर है। वही अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमिलिटी एंड प्राइडलेसनेस। अगर मैं अपने आप को समझूं मैं लड़का हूं या लड़की हूं, ये भी अहम है।
अगर मैं समझूं कि मैं डॉक्टर हूं या इंजीनियर हूं, ये भी अहम है। अगर मैं समझूं कि मैं भारतीय हूं या मैं बिहारी हूं या बंगाली हूं या गुजराती हूं, ये भी अहम है। अगर आप समझते हैं आई एम वेरी हैंडसम एंड स्मार्ट, ये भी अहम है। अगर आप समझते हैं आई एम अ वेल्थ कोच, आई एम अ एमबीबीएस, एमडी, प्रोफेसर, हेड ऑफ यूनिवर्सिटी, ये भी अहम है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि सही अहम क्या है जो अहंकार नहीं है? यस प्लीज, आई नीड द आंसर्स। नीरज जी और उनकी वाइफ, दे आर कनेक्टेड टू अ वेरी नाइस स्पिरिचुअल मूवमेंट। अनुकूल ठाकुर जी का जो मूवमेंट है, विच ऑल्सो टीचेस वेरी नाइस टीचिंग्स, है ना? तो बिल्कुल सही आंसर दिया उन्होंने कि अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, राइट? वी आर जस्ट द सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, एंड परमात्मा के हम शिष्य हैं या दास हैं। थिंकिंग वन सेल्फ टू एनीथिंग एल्स देन दिस इज अहम। अरे आप डॉक्टर हैं कितने देर के लिए? आप लड़का है कितने देर के लिए? आप अमीर या गरीब है कितने देर के लिए? हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच? आस्क दिस क्वेश्चंस, हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच? लेकिन जो आंसर नीरज जी ने दिया वो परमानेंट पोजीशन है आपका। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, ममये वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, परमात्मा के अंश हैं हम। अब आते हैं ममेती पे। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है, यही गाना चल रहा है। ये प्रॉपर्टी तेरा है, ये पैसा मेरा है, ये लड़की तेरी नहीं है, ये लड़की मेरी है, ये लड़का मेरा भी है और तेरा भी है। कोई बता सकता है कि आपका क्या है एक्चुअली? आई नीड टू नो। एक बार मैंने आईआईटी के क्लास में पूछा, टेल मी वन थिंग व्हाट इज टोटली अंडर योर कंट्रोल। लोगों ने अलग अलग आंसर Nothing. दिया। द आंसर Yeah, इज nothing. nothing is the thing which is totally under your Yes, control. yes. तो ये बहुत जरूरी है जानना कि अहम और ममेती में ये अंतर है। अहम इज द राइट पोजीशन कि मैं भगवान का एक दास हूं, एक तुच्छ दास हूं। और ममेती का राइट है कि आपका कुछ भी नहीं है। तीन चीज केवल आपके साथ जाता है इस दुनिया के अंत में, आपका धर्म, आपका कर्म और आपकी भक्ति। दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो लोग बोलते हैं मेरे ऊपर काला जादू हो रहा है, मेरे को बहुत परेशानी हो रहा है, मेरे को ये हो रहा है, वो मेरे को तकलीफ दे रहा है, ये मेरे को तकलीफ दे रही है। पता है, एक ही व्यक्ति आपको तकलीफ दे सकता है, वो है आपके खुद के कर्म। दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपका कर्म के कारण ही आपके ऊपर जादू हो रहा है, टोना हो रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, आपका तबीयत खराब हो रहा है। अगर आपने कर्म सुधार लिया ना, कोई भी नेगेटिव लोग आपको मिलेंगे नहीं, नेगेटिव सिचुएशन मिलेगा नहीं, नेगेटिव लाइफ आपको मिलेगा नहीं। तो दूसरों को हम लोग ब्लेम करना इमीडिएटली स्टॉप कर दें। हमारे कर्म के कारण पूर्व जन्म के शत्रु इस जन्म में अलग अलग लोग बन के आए हैं आपको सुधारने के लिए। और वो अपना कर्म कितना अच्छा कर रहे हैं आपको सुधार के। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहाए। पाप से दुख कटता है, सॉरी, दुख से पाप कटता है और सुख से पुण्य कटता है। तो अगर आपके जीवन में दुख देके भगवान आपके पाप को काट रहे हैं और सोने को चमका रहे हैं और अग्नि में आपको जला के आपको चमका रहे हैं, तो हम लोग क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? ये हो गया स्पिरिचुअल आंसर फॉर ऑल दुख। कोई भी आदमी दुखी होके आता है, बोलता है मेरे जीवन में सबसे ज्यादा दुख है। मैं बोला परमात्मा का तुम बहुत प्रिय हो। क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, आप मजाक कर रहे हैं क्या मेरे साथ? अरे भाई मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं तो गीता बोल रहा हूँ। हाँ, अगर आपको दुख हो रहा है यानी भगवान आपसे बहुत प्रेम कर रहे हैं, आपको शुद्ध कर रहे हैं अपने पास ले जाने के लिए। और अगर आपको बहुत सुख मिल रहा है, मतलब आप वेटिंग लिस्ट में है। आप वेटिंग लिस्ट में है। हाँ, आपका पुण्य कट रहा है ताकि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आ सके, सो दैट यू कैन एक्सपीरियंस द मटेरियल वर्ल्ड। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, साइंस दैट यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। टॉक्सिक रिलेशनशिप कहां कहां हो सकता है? इसका आंसर कोई मुझे बता सकता है? टॉक्सिक रिलेशन कहां कहां हो सकता है? पे, हस्बैंड पे, वाइफ पे, हाँ, दुकानदार पे, हर जगह टॉक्सिक रिलेशन हो सकता है।
जो व्यक्ति आपके साथ 10 साल रहा, आपने उसको हेल्प किया, ऑल ऑफ अ सडन वो बदल जाएगा। आप लोगों ने मौसम बदलते हुए देखा है? कितने लोगों ने देखा है? अभी बारिश हो रही है, अचानक से लाइट आ गया, अरे मौसम भी शर्मा जाएगा, मौसम भी शर्मा जाएगा जिस तेजी से लोग बदलते हैं। मौसम भी शर्मा जाएगा जिस तेजी से लोग बदलते हैं। मेरा लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो देखिए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, अगर आप लोग को जीवन में एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो होगा, सीजन से भी ज्यादा जल्दी लोग बदल जाते हैं। इसीलिए ना, किसी के साथ ज्यादा मोह मत रखो। जितना मोह रखोगे भगवान उतनी शुद्धि करेंगे ही, जितना मोह रखोगे भगवान उतना शुद्धि करेंगे ही। बी इन दिस वर्ल्ड बट नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड। लेट अस सी व्हाट आर द साइंस ऑफ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। नंबर 1, you give more than you are getting. Your needs are not met. कभी कभी हस्बैंड बात करना बंद कर देता है, कभी कभी बीवी बात करना बंद कर देती है। मैं एक बार सबको म्यूट कर दे रहा हूं और रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी को भी बोलना है तो एक बार हैंड अप कर दे, देन आई कैन गिव द चांस। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं हम लोगों को, कॉन्स्टेंटली डिसरेस्पेक्ट करते हैं। एक बार मैंने अपने एक पति से पूछा कि आप अपने वाइफ को कभी क्यों अप्रिशिएट नहीं करते हैं, आज तक आपको कितना हजारों कप चाय पिलाई होगी। बोले वो क्या, मेरी बीवी है, उसको क्या अभी मैं बार बार जताऊंगा क्या? प्रेम तो मैं करता ही हूं। यही तो गलती है ना भाई, जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा कर रही है उसको एक बार बोल नहीं सकते कि चाय अच्छा बना है? क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा क्या, पैसे का या रिस्पेक्ट का या इज्जत का? आज ही मैंने अपने स्टेटस में डाला है कि अपने आंसुओं को बचा के मत रखो कि माता पिता जब चले जाएंगे मैं रोऊंगा। अरे जब जिंदा है उनको कुछ हंसी, कुछ अच्छे पल, कुछ लव, कुछ हग, गिव इट टू देम। इंडिया में आदत है, हाँ, या बाहर भी आदत है, जब कोई चला जाता है जाके जोर जोर से रोना और फूल देना और पत्तियां बरसाना। क्यों? जब जिंदा था जाके एक बार भी पूछे? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी नीड टू रियलाइज। एंड प्लीज माइंड माई गोल्डन स्टेटमेंट, ऑल ऑफ यू टाइप इन द चैट बॉक्स GS, यू कैन नॉट लव एनी वन विदाउट रेस्पेक्टिंग हिम। कौन समझाएगा ये बात मेरे को? यू कैनॉट लव एनी वन विदाउट रेस्पेक्टिंग हिम। हम लोग को एक डीप बात समझने की जरूरत है। क्या है वो डीप बात? अंदर से जब तक किसी के लिए रेस्पेक्ट नहीं होगा ना, आप ना तो उसको लव कर पाओगे ना इंटरेक्ट कर पाओगे। क्योंकि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस होता ही नहीं है ना, करंट कैसे फ्लो होगा? अगर आपका भी वोल्टेज उतना और आप दूसरे का वोल्टेज को आपसे कम समझते हैं, आप तो कभी उसको अंदर से अच्छा फील ही नहीं करोगे। नाउ टेल मी, हाउ कैन यू हैव रेस्पेक्ट फॉर अ पर्सन जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है? अब पूछता हूं मैं टफ क्वेश्चंस। हाउ कैन यू हैव रेस्पेक्ट फॉर अ पर्सन जो आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है? जब तक हम लोग देहात्म बुद्धि में रहते हैं तो हमें लगता है ये है, वो है, ये पागल है, ये मूर्ख है, ये लेजी है, ये यूजलेस है। बट कृष्ण गीता में बोलते हैं पंडित समदर्शिना, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ डिवोटी इज दैट ही सीज इक्वली एवरीवन। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति। जो हर चीज में मुझको देखता है और मुझ में हर चीज को देखता है, जो मुझ में हर चीज को देखता है और हर चीज में मुझको देखता है, ऐसा भक्त को कभी मैं नहीं खोता और ऐसा भक्त मुझे नहीं कभी खोता है। अगर हमेशा हम लेने के मूड में क्यों रहते हैं? अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए कुछ नहीं कर सक रहा है, तो क्या आप उसको इस बात के लिए रेस्पेक्ट कर सकते हो कि वो आपको मौका दे रहा है कुछ पुण्य कमाने के लिए, कि आप उसके लिए कुछ कर दो? हाँ? हर लोग से क्या लेना जरूरी है? जब कोई भिखारी आके आपके सामने नॉक करता है, एक बार मैं अपने गुरु महाराज के साथ जा रहा था, गाड़ी जा रही थी एयरपोर्ट के तरफ, और अचानक से उसने गाड़ी के कांच में नॉक किया। तो मैंने उसको ऐसे झटकार दिया, मैंने बोला नहीं है नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मेरे गुरु महाराज ने मुझे, वो रेयर पीछे बैठे हुए थे,
मैं थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस था, तो मैंने उसको बोला आगे बढ़ो आगे बढ़ो। और फिर मेरी नजर गई रेयर व्यू मिरर पे, और मेरे गुरु मुझे एकदम पैनी नजरों से देख रहे थे, एकदम आंख से आंख मिल रहा था, और हम थोड़ा डर सा गए, आंख एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी उनकी। और उन्होंने मुझे बोला, जीवन में मैं भूल नहीं सकता, that person was asking Krishna from you and you just send him away. हाँ, गुरु ने मुझे बोला, आपको लग रहा है कि वो आपसे पैसा मांग रहा था, लेकिन हर आत्मा को भगवान चाहिए। और बोला कि आपने प्रसाद क्यों नहीं रखा अपने पास? अगली बार अगर कोई मांगे, कोई आत्मा, यहां हम लोग देते हैं, लोग लेने के लिए नहीं होते, कोई मांगने आ रहा है, ठीक है, कई बार वो बेगर के गैंग्स होते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लेकिन आप कुछ दो। हाँ, आप प्रसाद है तो प्रसाद दो, हरे कृष्णा बोलो, और बोले अगली बार अगर तुम्हारे पास नहीं हुआ ना, मैं तुम्हारा कपड़ा खोल के दे दूंगा उसको। यू नो, हम लोग ना देने का आदत खो बैठे हैं। तो कुछ दिए बगैर भी करेक्ट। नहीं जा सकती थी, तुमसे बोल हाँ, के गई। यहाँ भी आपका इंटेंशन बिल्कुल प्योर था, बिकॉज यू वांटेड टू डू गुड फॉर द पर्सन, सो द इंटेंशन काउंट्स। तो एक गोल्डन स्टेटमेंट आप लोग नोट कर दिए, इससे मुझे याद आया, जज अदर्स बाय देयर इंटेंशन एंड जज योरसेल्फ बाय योर एक्शंस। मान लीजिए कोई किसी का मर्डर कर देता है, और मर्डर के बाद बोलता है अरे मेरी तो गलती हो गई, मैं तो इंटेंशन मारने का था ही नहीं, हाथ स्लिप हो गया, ये क्या बात हो गई? लेकिन मान लीजिए किसी ने आपके साथ गलती किया, गिव हिम अ बेनिफिट ऑफ डाउट, शायद इसका इंटेंशन अच्छा हो, लेकिन शायद इससे गलती हो गई। लेकिन आप अगर गलती करते हैं, ये मत बोलिए कि मेरा इंटेंशन सही था, आप देखिए कि आपने गलती क्यों किया। राइट, दैट इज द वे। नाउ हमेशा याद रखिए कि हम लोग को देने का हैबिट करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दे दे के एक दिन तो सब कुछ छोड़ के जाना है ना, है ना? अगर देना नहीं सीखे तो छीन लिया जाएगा, प्रकृति का नेचर ऐसा है, अगर देना नहीं सके तो छीन लिया जाएगा। राइट, बताऊं, जज अदर्स बाय देयर इंटेंशंस, या यूज द वर्ड इवैल्यूएट अदर्स बाय देयर इंटेंशंस एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ बाय योर एक्शंस। मान लीजिए आपने चोरी किया है, कोई आपसे बोला आपने चोरी क्यों किया, ये मत बोलिए अरे मेरी तो इंटेंशन चोरी करने की थी नहीं, पता नहीं मैंने कैसे चुरा लिया। दिस इज अ ब्लडी लाई, क्योंकि आपने चोरी किया है। लेकिन मान लीजिए आपकी चोरी हो गई, और चोर आके बोलता है सर मेरी ना बहुत जरूरत थी तो मैंने थोड़ा पैसे निकाल लिए, उसको आप बेनिफिट ऑफ डाउट दो कि हो सकता है बेचारे का इंटेंशन चोरी करने का नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी के कारण उसने चोरी की है। जज अदर्स बाय देयर इंटेंशंस एंड जज योर्स बाय देयर एक्शन। लोग उल्टा करते हैं, कोई भी ब्लेम करो, बोले मेरा तो ऐसा इंटेंशन था ही नहीं प्रभु जी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, कमिंग टू नीरज जी's पॉइंट, देने का हैबिट कीजिए। कौन ही है Yes. इस पूरे ब्रह्मांड में जो बोल सकता है कि मुझे देने के लिए कुछ नहीं है? कोई आपके घर में आया है, बैठ के उसको भोजन कराइए। अगर आपको भोजन देने के लिए नहीं है, कम से कम पानी पूछिए। अगर आपके पास पानी भी नहीं है तो उसको बैठने का स्थान दीजिए। अगर आपके पास चेयर भी नहीं है, उसको जमीन दीजिए बैठने के लिए, जमीन तो है ना। मान लीजिए आपके पास जमीन भी नहीं है, तो मीठे वचन तो है ना बोलने के लिए। अगर आप गूंगे हैं ना, कम से कम स्माइल तो कर सकते हैं ना। कौन ही बोल सकता है कि मुझे देने के लिए कुछ नहीं है? इस दुनिया का सबसे सेल्फिश आदमी मैं करता है। जो थोड़ा सेल्फलेस होता है, उसको मैं और मेरा थोड़ा सा होता है। गर्म पानी में कभी नहीं डालते होम्योपैथिक ड्रग्स को, एनीवे, है ना? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उसके बाद मेरा देश, मेरा वतन, माई कंट्री, माई नेशन, माई अर्थ। प्लीज अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक का जो सेवा करता है ना, वो सबसे सेल्फलेस आदमी है। क्योंकि जब रूट में पानी दिया जाता है तो पूरा ब्रह्मांड खिल उठता है। माधव सेवा मानव सेवा के आगे है, और मानव का सेवा को माधव से कनेक्ट करके दे तो वो परम सेवा है। हम लोग कभी लोगों को खाना नहीं खिलाते, हम लोग लोगों को प्रसाद खिलाते हैं। क्योंकि कृष्ण गीता में बोलते हैं कि खाना अगर खिलाते हो तो आप सिन खिला रहे हो, पाप खिला रहे हो।
क्योंकि भगवान को भोग अर्पित नहीं है। हम लोग सिर्फ लोगों को ट्रीटमेंट नहीं देते हैं शरीर के लिए। एक आदमी डूब रहा है, उसका कपड़ा पकड़ लीजिए, कपड़ा हाथ में आ जाएगा, वो डूब जाएगा। Welfare activities are to be done in connection with God, not independent of God. So, coming back to our topic, respect everyone. आदमी को कितना रेस्पेक्ट करना चाहिए, कोई बोल सकता है? How much? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि सुनीचेन, जो अपने आप को तृण से भी नीचा समझे, तरोरपि सहिष्णुना, जो एक पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु हो। इसके बारे में मैं आपको एक कहानी बोलना चाहता हूं। एक केले का पेड़, केले का पेड़ का हर पार्ट यूज हो जाता है। पत्तों से प्लेट बन जाता है, तने से नौका बन जाता है, जब वो फूल होता है उसकी सब्जी भी बन जाती है, जिसको बंगाली में बोलते हैं मोचार घंटो। कच्चा केला का भी सब्जी बनता है, पका केला का भी लोग खाते हैं। केले का पेड़ का हर पार्ट जन सेवा में न्यौछावर हो जाता है। एक आम का पेड़ था, उस आम के पेड़ के बगल में एक कुटिया थी। उस कुटिया में एक फैमिली रहता था। जब वो फैमिली रहता था, दो छोटे छोटे बच्चे थे। गर्मी के समय, ग्रीष्म ऋतु के समय वो आम गिरता था, आम खाते थे। चिड़िया उस आम के पेड़ पे कलरव करती थी। आम तो पेड़ के साथ फैमिली का बहुत लगाव हो गया था। आप लोग को हुआ है कभी कोई पेड़ से लगाव, थोड़ा सा प्रेम, कोई फूल से पत्ता से होना चाहिए, है ना? समय बीतता गया, बहुत सीजन आए, बहुत आम हुआ, बहुत प्रेम हुआ, पेड़ पे चढ़ा। एक टाइम आया, फैमिली वहां से चली गई और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने आके उस आम के पेड़ को काट दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये कहानी। 20 साल बाद वो बच्चा अपना घर देखने आया तो कुटिया वहीं थी, तो देखा आम का पेड़ कट गया है, एक भी चिड़िया नहीं है। उसको बहुत तकलीफ हुआ, क्योंकि उस आम के पेड़ के साथ एक रिलेशन बन गया था। अब कहते हैं ना कि हर चीज में जान होता है, अलग अलग लेवल से। जैसे 84 लाख योनि में 4000 प्रकार के मनुष्य हैं, और 4000 प्रकार के मनुष्य कैसे अलग हैं बाय द लेवल्स ऑफ द चेतना। उसी तरह प्राण भी अलग अलग प्राणियों में अलग अलग मात्रा में है। और एक पत्थर में भी प्राण होता है, लेकिन कम। नर्मदेश्वर के शिवलिंग और एक नॉर्मल पत्थर में बहुत प्राण में अंतर होता है। और गंडकी नदी के शालिग्राम शिला और एक नॉर्मल पत्थर में बहुत अंतर होता है ना? एक विष्णु का रूप है तो दूसरा शिव का रूप है। और एक एटम में प्राण कितना होता है? परमात्मा का अंश उस एटम में भी है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं न्यूक्लियस के अराउंड। जब बच्चा आके उस पेड़ को प्रेम से देखने लगा, वो तना कटा हुआ था और उसने प्रेम से बोला, रोहन आओ मेरे ऊपर बैठो आज, क्योंकि आज मैं आपका कोई सेवा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ना मेरे पास फल है, ना मेरे पास पत्ता है, ना मेरे पास आपको देने के लिए शेड है, और ना ही ठंडा ये है। लेकिन मेरा तना है, आप इसके ऊपर बैठो और मुझे अच्छा लगेगा। द पॉइंट इज दैट इफ यू वांट टू सर्व, देयर कैन नॉट बी एनी बैरियर्स। हाँ, अगर आपकी चेतना देने की है तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, और अगर चेतना लेने की है तब भी आपको कोई रोक नहीं सकता है। अगर हमारी चेतना देने की होती तो मृत्यु के समय हमें कोई दर्द नहीं होगा, और जितना चेतना लेने की होगी ना, मृत्यु के समय सब कुछ अचानक छीन लिया जाएगा। मृत्यु सर्व हर्ष चाहम, और आपके हृदय में दर्द उतना ही होगा। तो ये हो गई पेड़ की दो बातें, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना। एंड कमिंग टू द पॉइंट ऑफ रेस्पेक्ट, व्हाट चैतन्य महाप्रभु सेड एंड व्हाट चेतन जी सेड, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मान देना। One who gives all respects to others
not some respect, not measured respect, not deserving respect, but all respects to others. And part 2, amananiya manadena, and expect none in return. That is the beauty. Not some in return. Not some in return. It's none in return. लोग बोलते हैं प्रभु मैं हरे कृष्ण का जाप नहीं कर पाता हूं. लोग बोलते प्रभु मंत्र जैसे बोलता हूं तो कुछ और माइंड में आ जाता है. तो आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, आप विषय का जाप कर रहे हैं. अगर हरे कृष्ण मंत्र करते करते आपको याद आ रहा है कि आज पपीता सूख जा रहा है, इस पपीते की सब्जी को बना लेता हूं आलू भुजिया के जगह, तो उस टाइम आप पपीता का जाप कर रहे हैं और आलू का जाप कर रहे हैं, कृष्ण का जाप नहीं कर रहे हैं. चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप कीर्तनीय सदा हरि 24 घंटा कृष्ण कीर्तन में तभी रह सकते हैं when you are more humble than a blade of grass, when you are more tolerant than a tree, when you give all respects to others, all is in capital, bold and underline, and expect none in return, not some in return. In such a state of mind, one can chant the holy names of the Lord constantly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. अगर आपके घर में एक फल का वृक्ष है और आप उस फल के वृक्ष में पानी इसलिए दे रहे हैं कि कब वो फल होगा आप उसको निकालेंगे और खाएंगे, तो ये सच्चा प्रेम नहीं है. अगर आपके घर में एक फल या फूल का वृक्ष है और आप उसमें जल दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की इच्छा या फूल की इच्छा नहीं करते हुए और उसके फलने और फूलने को देखने में ही आपकी खुशी है, तब आपका प्रेम काफी हद तक निश्चल, पवित्र और शुद्ध है.